یہ پروگرام ہفتے میں 4 دن آپ دیکھا کریں گے رات 10:05 پر. تیرے لک دے ہلارے نی سانو لگ دے پیارے نی دل سینے اچ مارے نی تیری اکھ دے اشارے نی. جب آپ کروٹ لیں گے سر میں تو چک تو نکلے گی نا. نانا ناولا نے ایک بیان دیا ہے کہ بیٹی ہے دلٹے میں عورتیں آٹی خاتون آٹی ہیں وہ گھریلو نہیں ہوتی. میں اس کے خلاف ہوں کہ آپ عوام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، روحانی دنیا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ صدف چودھری. امید کرتی ہوں ہمارے تمام ناظرین پروگرام دیکھنے والے جہاں کہیں بھی ہیں خیر وفیت سے ہوں گے. مزید دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف آپ کی رہنمائی کرنا اور آپ کے مسئلوں کا حل بیان کرنا ہے، جس میں آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، آپ گھر بیٹھے اپنے مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں جان سکتے ہیں. اور وہ ہمارے ناظرین جو لائیو پروگرام میں کال نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو انہیں ڈسکس نہیں کیے جاتے، آپ کی سہولت کے لیے ہم نے نمبر ڈسپلے کیے ہیں. آپ کی ٹی وی اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں، وہ آپ اپنی سے اپنے پاس سیو کر لیجئے تاکہ پروگرام کے بعد آپ کال کر سکیں اور اپنا مسئلہ شیئر کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسئلے کا حل جان سکیں. تو ناظرین، آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان، ہمارے معزز، ہمارے روحانی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیر سید زوار حسین موسوی صاحب جو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تمام ناظرین کی رہنمائی کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم پیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم باخریت ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے بھی باخریت ہوں گے اور اپنے رب سے دعا گو ہیں کہ ہمارے تمام پاکستان کے عوام کو اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور انسان اور شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے. آمین آمین ثم آمین. جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کس نوعیت کا ہمارا پروگرام ہے، اس کے مطابق آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنا بیسک پروفائل بتا کر اپنے مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں جان سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، آپ کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، سفر میں رکاوٹ ہے، یا آپ اسٹڈی سے بار بار ناکام ہو جاتے ہیں، تو بذریعہ کال پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور وہ ہمارے ناظرین جو آن ایئر کال نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی جو آن ایئر ڈسکس آپ بھی نہیں کر سکتے اور پیر صاحب بھی آپ سے آن ایئر ڈسکس نہیں پوچھ سکتے، تو آپ آف ایئر کال کرنے کے لیے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں، وہ آپ ضرور نوٹ کر لیجئے. پروگرام کے بعد جب چاہیں مرضی آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا جو بھی جیسا بھی مسئلہ ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اور کسی بھی حوالے سے آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو استخارہ بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر ہم استخارہ کروا لیتے ہیں تو اس میں ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے، اس میں ہمارا ہی بھلا ہوتا ہے، ہماری ہی بہتری ہوتی ہے، ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یا کرنے والے وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں. اور استخارہ کروانا ہمارے پیارے کی سنت بھی ہے، تو کیوں نہ ہم اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اور یہ چیز اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے. پروگرام کے آغاز میں ہمارے ساتھ لائیو کالر ان کو شامل کرتے ہیں، جانتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. غالباً کال جو ہے ڈراپ ہو چکی ہے. چلیں کوئی بات نہیں، پروگرام کے دورانیہ اگر آپ کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے تو آپ کی سہولت کے لیے ہم نے نمبر ڈسپلے کیے ہیں، وہ آپ ضرور نوٹ کر لیجئے. آفٹر پروگرام جب چاہیں مرضی آپ ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. پیر صاحب، جیسا کہ ہمیشہ ہم ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، آج میں آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گی سیب کے حوالے سے کہ سیب کیا ہے اور انسانی زندگی پہ اس کا کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے ناظرین ایسے ہیں جو سیب کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا ڈیپلی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بہت نالج ہے اور بہت سارے ایسے جو بڑے بڑے عامل ہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور اس حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، آپ کے پاس بیٹھ کے کالز بھی اس طرح کی آتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے لوگ جو وہ آپ سے رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. بے شک. گزارش یہ ہے جی کہ لفظ جو آسیب ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں. ایڈیشنلی ایک لفظ آسیب کے اندر تمام وہ شیاطین، تمام وہ ارواح خبیثہ
तमाम वो देवी देवता और वो कफ़ार जिन्नात की अरवाह, ये तमाम चीज़ों का मजमुआ है आसेब। जी। और ये मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं इसमें, जिस तरह भूत है, परीत है, चुड़ैल है, हमजाद है, द्योजाद है, परीजाद है, शयातीन जिन हैं, कफ़ार जो हैं, और अरवाह खबीसा जो अबलीस के मानने वाली रूहें हैं, वो भी आसेब में आती हैं। अब ये बहुत बड़ा एक ये कह लें कि ख़ज़ीना है इल्म का। देखें इल्म जो है वो जो कुरान पे मामूर है, वो इल्म जो 5 आसमानी किताबों का है वो भी इल्म है, लेकिन उसके अपोजिट जो शयातीन के अलूम हैं वो भी इल्म ही के अंदर आते हैं। जी। गो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जादू कुफर है, उसकी तरफ मत लौटो। वो जादू जो इंसानी ज़िंदगी को तहबाला करे, उसके अंदर तगैर ले आए, चलते चलते काम को ठप कर दे, हंसे बसते घर को उजाड़ के रख दे, वो कुफर है, उसकी तरफ ना लौटो। लेकिन वो कलाम जो राहत इंसानियत का मूजब बनता है या किसी के लिए आसानी पैदा करे, उस कलाम का, उस इल्म का, उस अमलियात का बाकायदा इजाज़त है। और वो राहत इंसानियत के लिए किसी को दम करना, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई गुनाह नहीं। किसी को कलाम पढ़ के उसको वजीफ़ा करके उसकी राहत का सामान करना, इसमें किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं। अब आपने एक टॉपिक ऐसा रखा है कि आसेब, इस पे मैं अगर बयान करूं तो मुझे 4 घंटे भी कम पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो हम सैयद हैं, आले रसूल हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबोहा के मसदाक। हमारी जद्द अमजद जो है वो इल्म के शहर भी हैं, इल्म का दरवाज़ा भी हैं। और फिर ये है कि पुश्त दर पुश्त हमारे अजदाद ने जो अलूम हासिल किए, जो हमारी तरबियत में शामिल किए, उनका भी असर है। फिर उसके बाद हमारा अपना हसूल जो है वो 50 साला दौर का, वो भी खुदा का फजल है, करम है। इसके अलावा हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे पीर मुर्शद पीर सैयद अब्बास अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आप उच शरीफ, जिन्होंने हमारी इस्लाह की और हमें जो है ना वो इस काबिल बनाया कि हम मखलूक के खुदा के काम आ सकें और उनकी राहत के लिए कोई सामान कर सकें। बहुत से हमारे ऐसे अकाबरीन का अमल दखल है हमारी इस कावश में। तो हम अगर इस पे आसेब पे बोलेंगे तो 4 घंटे कम से कम चाहिए उनके मेन, उनकी ज़ात बताने में, उनकी अक़साम बताने में, उनकी कारकर्दगी बताने में, या उनके जो उनके अंदर कबाइल हैं, जो ख़ानदान हैं, जो उनके बसेरे हैं, उन चीज़ पे रोशनी डालने के लिए एक तवील वक़्त दरकार है। मोटा मोटा हम ये बता देते हैं कि अगर किसी के घर में किसी किस्म की आवाज़ें आती हैं तो वो समझ ले कि उसके घर में आसेब का खलल है जी। या किसी के घर में आपने सुना होगा कि बंद बक्सों में कपड़ों का कट जाना, कुछ चीज़ों का जल जाना, या किसी किस्म का नुकसान का होना, चीज़ों का गुम हो जाना, ये भी आसेब का काम होता है। आगे चल के इंशाल्लाह आप कॉल ले लें, हम इंशाल्लाह आगे चल के मज़ीद वज़ाहत आप बातें करें। इतनी अहम कर रहे हैं कि हमारे जो कॉलर हैं वो काफ़ी देर लाइन पे वेट कर रहे हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही है मोहतरमा? अपना नाम बताइएगा। क्या बात कर रही हूँ? नहीं, नाम रिपीट कीजिएगा। आप क्या बात कर रही हूँ? मैंने पूछना था, मैं बीमार हूँ, काफी अर्से से बड़ी दवाइयाँ वगैरह ले रही हूँ, कहीं से आराम नहीं आ रहा। ठीक है, आफिया, अपनी वालदा साहिबा का नाम बताइएगा। सरदारा बीबी। और आपकी उम्र कितनी होगी? 30 साल। डॉक्टर से रिजू किया, मेडिसिन ली आपने डॉक्टर से? जी जी, बहुत बहुत दवाइयाँ, जहाँ से भी दवाई लेती हूँ ना, पहले 1-2 दफा में आराम आ जाता है, फिर वही दवाई असर ही नहीं करती, आराम नहीं आता। क्या होता है? बुखार है, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, क्या? गैंठिया, कोई कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कोई कहते हैं गैंठिया है। तो मुझे तकरीबन 10 साल हो गए इस बीमारी में, आराम नहीं आ रहा।
चलिए आफिया, परेशान नहीं होते, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, हमारे साथ रहेगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाएगी। इस हवाले से जानते हैं पीर साहब से कि पीर साहब आपकी क्या रहनुमाई करते हैं। पीर साहब आप क्या आफिया के हवाले से? मेरी बेटी, जो अगर गैंठिया है उसमें इकसाम हैं, किसी को मीठा गैंठिया है, किसी को जो है वो कड़वा गैंठिया है। जो मीठा गैंठिया है उससे इंसान जो है वो चल फिर नहीं सकता, उसके आज़ाद जो हैं यानी टांगें जो हैं उनके पट्टे काम नहीं करते, बाजुओं के पट्टे काम नहीं करते, गर्दन के पट्टे जो रीढ़ के साथ होते हैं वो काम छोड़ देते हैं। अगर आपको कोई ऐसी अलामत है आप अपना इलाज अपने घर, तो कागज़ पेंसिल लें और नोट फरमाएं कि कुरान पाक के पारा नंबर 21 में सूरह लुकमान वाक़े है, वो एक मरतबा नमाज फजर के बाद पढ़ के तेल पे और पानी पे दम करें। वो पानी आप पिएं और तेल जो है उसको मजरूबा जगह पे यानी जितने भी जॉइंट है जिस्म के तमाम पे हल्का हल्का मसाज दें। इसके बाद आप पारा नंबर 24 में आ जाएं, सूरह मोमिन, जो है तो बेसिक वबाई अमराज के लिए, लेकिन इस तरह के अमराज जो होते हैं ना, देर पा अमराज, जिस तरह मुल्ती बुखार है, टाइफाइड है या गैंठिया है, जी, इस तरह के जो देर पा अमराज हैं उनके लिए भी ये सूरह मोमिन बहुत अक्सीर है। नमाज मगरिब से आधा घंटा पहले सूरह मोमिन की तिलावत करें, सुबह की तरह ही तेल और पानी रखें और वो तेल जो है वो मदरूबा जगह पे इस्तेमाल करें और पानी खुद पिएं, तो इंशाअल्लाह और अज़ीज़ आपको राहत होगी, शफाए कामला मिलेगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, जानते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कोई है लाइन पे हमारे साथ? नहीं, गालिबन कॉल जो है ड्रॉप हो चुकी है। चलें कोई बात नहीं, प्रोग्राम के दौरान अगर आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है तो पीर साहब के पर्सनल नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, वो आप ज़रूर नोट कर लिया करें ताकि प्रोग्राम के बाद भी आप कॉल कर सकें और अपने मसले का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में जान सकें। बहुत सारे हमारे नाज़रीन ऐसे हैं जो कॉल करते हैं। मैं हर प्रोग्राम में ये अनाउंस करती हूँ कि आप जब कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल किया करें ताकि पीर साहब आपका प्रॉपर मसला सुन सकें और प्रॉपर आपकी रहनुमाई कर सकें। पीर साहब का बहुत कीमती वक्त होता है जो आप लोगों की रहनुमाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, सो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ख्याल किया करें क्योंकि आप लोगों की कॉल्स हमारे लिए अहम होती है। हम नहीं चाहते कि आपकी कॉल ड्रॉप हो जाए या ड्रॉप की जाए। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, जानते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताइएगा। जी, अब्दुल सईद बात कर रहा हूँ ज़िला बकर से। अब्दुल सईद, जी जी ठीक है। अपनी वालिदा साहिबा का नाम बताइएगा। जी, नज़ीरा बेबी, मेरी जॉब का मसला है, मैंने इंटरव्यू दिया है, वो पता करना जॉब आएगी लगेगी कि नहीं। गवर्नमेंट की जॉब या प्राइवेट? गवर्नमेंट की जॉब। चलिए, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ रहेगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जॉब होगी या नहीं, इस हवाले से मेरे भाई प्रॉपर इस्तिखारा किया जाता है। इस्तिखारा लाइव हम नहीं कर सकते क्योंकि पीर साहब इस्तिखारा जब करते हैं तो उनको टाइम चाहिए होता है। अभी फिर फॉर आपको वजीफ़ा बताया जाएगा, वो आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जब पीर साहब आप क्या फरमाएंगे इनके हवाले से? जी मेरे बेटे, बात यह है कि हम आपको दोनों चीज़ें नोट करवाते हैं। सबसे पहले तो आप 3 दिन के लिए कुरान पाक के पारा नंबर 27 में सूरह नजम, जो कि हाजत रवाई के लिए इंतहाई मुजर्रब सूरा है, वो सूरा रोज़ाना सुबह नमाज फजर के बाद 1 मरतबा तलावत करें, पानी पे दम करके वो पानी पिएं और 3 दिन ये करने के बाद जब रात आएगी तो उस रात के 1 बजे या पौने 1 बजे के बाद बावजू हालत में अपने बिस्तर पे बैठ के, बशर्त है कि आपके बिस्तर का कपड़ा पाक साफ़ हो, आपका लिबास पाक साफ़ हो और आपका जिस्म बावजू और पाक साफ़ हो, तो आप वहाँ अपने बिस्तर पे बैठ के या खबीरो उखबिरनी, अल्लाह पाक के 99 नामों में एक नाम है या खबीरो यानी ख़बर देने वाला, और आपने पढ़ना इस तरह है या खबीरो उखबिरनी, ए ख़बर देने वाले ख़बर दे। जब 303 मरतबा आप ये या खबीरो उखबिरनी पढ़ के आप सो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
बशारत के ज़रिए, ख्वाब के ज़रिए आपकी रहनुमाई करेंगे। अगर आप उस रात में देखते हैं कि कोई शख्स आपको रिज़्क दे रहा है या कोई शख्स आपको कोई सर पे बांधने वाला कपड़ा दे रहा है या किसी दफ्तर में अपने आप को पाएं, तो ये नतीजा अख़ज़ कर लें कि आपकी इंशाअल्लाह ये जॉब लगेगी। ठीक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में बहुत सी बरक़ात हैं और मुझे 50 साल तकरीबन हो गए हैं प्रैक्टिकल में कि इलाज बिल कुरान पे मैं 97 से लेके स्क्रीन पे हूँ। जिस शख्स को मैंने आयाते कुरानी के वज़ाइफ दिए हैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी से भी शिकवा नहीं हुआ। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है? जी मैं मीना बात कर रही हूँ लाहौर से। मीना? हाँ जी। ठीक मेरा है। मसला ये है कि मेरी एज है 42 मीना, और अभी तक शादी का जो है वो सिलसिला नहीं बन पा रहा, और दूसरा ये है कि रिश्ते आते भी हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते हैं, और अगर कहीं बात बनती भी है तो वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा मोहतरमा, नाम रिपीट अपना बताइएगा कि आपका नाम मीना है या रबीना है? तहमीना। तहमीना, ठीक है, तहमीना। और वालदा मोहतरमा का नाम? निगत। निगत। आपकी उम्र कितनी होगी? 41। ठीक है, अब आपका रिश्ता आता ही नहीं है? आते हैं लेकिन बात कोई नहीं बनती है, और अव्वल तो आते ही कोई नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ रहेगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाएगी। रिश्ते की रुकावट ख़त्म करने के लिए आपको वजीफ़ा बताया जाएगा, आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। पीर साहब, तहमीना मेरे बेटे, इल्मुल अदाद के ज़ाहिरी ज़ायचे के मुताबिक आपके ऊपर बंदिश है, लेकिन आपको 2 सूरतें लिखवाई जा रही हैं। आप इनका वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह 7 दिन के वजीफ़े से आपका जिस्म आपको बताएगा कि आपका जिस्म गुलाब के फूल की मानद हल्का फुल्का है और आपको ज़हनी सुकून मैसर आएगा। और इसके साथ साथ आपके रिश्ते की ये बंदिश भी दूर होगी, क्योंकि अल्लाह की कलाम में बहुत ताकत है। सबसे पहले पारा नंबर 16 से सूरह ताहा एक दफ़ा नमाज फजर के बाद लाजमी पढ़िए, और इसके साथ नमाज मगरब से आधा घंटा पहले कुरान पाक के पारा नंबर 17 से सूरह अंबिया ये सूरा भी पढ़ें। ये सूरह ताहा बंदिश रिश्ता के लिए अक्सीर है, हम हर प्रोग्राम में बताते हैं, कल के प्रोग्राम में भी हमने बयान किया था। और सूरह अंबिया जो है वो उस सूरत में काम आती है कि अगर किसी बच्चे पे या बच्ची पे कोई नौसत के असरात हों, नज़र बद या हसद के असरात हों, किसी किस्म की बंदिश हो, तो वो सूरह ताहा के साथ जब सूरह अंबिया दी जाती है तो इंशाअल्लाह वो बंदिश भी खुल जाती है और उसका नसीब भी सामने आ जाता है। आप भी ये दोनों सूरतों के वज़ाइफ करें, इंशाअल्लाह आपको राहत होगी। इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। गालबन कॉल जो है ड्रॉप हो चुकी है। चलें कोई बात नहीं, प्रोग्राम के दौरान अगर आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है या वो हमारे नाज़रीन जो ऑनर अपना मसला डिस्कस नहीं करना चाहते, तो आपकी सहूलत के लिए हमने नंबर डिस्प्ले किए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं ये पीर साहब के पर्सनल नंबर है, आप अपने पास सेव कर लीजिए। आफ्टर प्रोग्राम जब चाहें मर्जी आप इन नंबर्स पर रब्ता करके अपना मसला शेयर करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने मसले का हल जान सकते हैं। एक और लाइव कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, अपना नाम बताइएगा। जी मैं मदिया बात कर रही हूँ, जिला अटक से। ठीक है मदिया, अगर आपका मसला है तो वालदा साहिबा का नाम बताइएगा। जी मेरा मसला नहीं है, मेरे भाई का मसला है। उनका नाम है मोहम्मद आजम खान। ठीक है, मोहम्मद आजम खान। और आपकी वालदा का नाम? जी वालदा का नाम नसीम अख्तर। आजम की उम्र बताइएगा। भाई की उम्र बताइएगा। हेलो, अपनी टीवी की आवाज बंद कर लीजिए प्लीज। हेलो जी, वो हर वक्त बीमार रहते हैं और उनका मतलब ये है कि वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ रहेगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाएगी। आपकी भाई की बीमारी के हवाले से जानते हैं पीर साहब से। पीर साहब, आप क्या फरमाएंगे? मेरे बेटे, आप अपने भाई के लिए ख़ुद अगर वजीफ़ा करें या उनकी अगर बेगम है तो उसकी ड्यूटी करें, या अगर वालदा हयात हैं तो उनकी ड्यूटी लगाएं।
کہ कुरान पाक के पारा नंबर 16 से सूरह मरियम और पारा नंबर 21 से सूरह लुकमान, ये दोनों सूरह एक एक मरतबा नमाज फ़जर के बाद पढ़ें, पानी पे दम करके अपने भाई को पिलाएं और साथ में सूरह नास, कुल औज़ बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, जो पूरी सूरह लिख के बग़ैर ज़ेर ज़बर के अपने भाई के गले में डालें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 7 दिन के अंदर आपके भाई को शफ़ा मिलेगी। जब उनको शफ़ा हो जाए तो फिर उनके गले का नक्श उतारिएगा और साथ में 2.5 किलो जो है वो टोटा चावल वो सदका कीजिएगा और वो नक्श जो गले से उतारना है वो किसी आटे के पेड़े में रख के बहते हुए पानी की नज़र करें। वो हज़रत ख्वाजा खिज़र ख्वाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में चला जाएगा, वो भी एक सदका होगा। इंशाअल्लाह आपका भाई शफ़ा पाएगा। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह यकीनन आपके मसले का हल आपको मिल चुका है। नेक्स्ट कॉलर है लाहौर से, इन्होंने ज्वाइन किया है, जानते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम बताइएगा अपना। आसिफ अली मेरा नाम है। आसिफ अली, ठीक है। अपनी वालदा मोहतरमा का नाम बताइएगा। बलकीस बेगम। आसिफ, और एज बताइएगा अपनी। मेरी 30 साल है। ठीक है, मसला बयान कीजिएगा, क्या जानना चाहते हैं आप इस सबसे। जी वो ना रात को अक्सर मेरे बच्चे डर जाते हैं, बीमार भी काफी रहते हैं, मैं भी काफी दफा डर गया हूँ। तो ये पूरा माना काफी देर से आया और माली हालात बहुत ज्यादा खराब है, ये मकान में आया है वालदा की तरफ से ना, ये था मेरा वालद की तरफ से। चलिए आसिफ, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ रहिएगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाएगी। रहनुमाई लेते हैं पीर साहब से कि पीर साहब क्या फरमाते हैं। जी पीर साहब। जी मेरे अजीज़, आप ऐसा करें कि 100 रुपये का हरमल दाना वो अपने घर लेके आएँ। उसके ऊपर कुरान पाक के पारा नंबर 18 से सूरह नूर 1 मरतबा और पारा नंबर 22 से सूरह यासीन 1 मरतबा, ये दोनों सूरह तलावत करें और ये रोज़ाना आपने करना है 7 दिन तक। ये दोनों सूरतें पढ़ के हरमल दाना और पानी के गिलास पे फूंक मारें, दम करें। वो हरमल दाना जो है उसकी अपने घर में दूनी रसायन करें और वो जो पानी है वो ख़ुद भी पिएं और अपने बच्चों को भी पिलाएं। उसमें और भी पानी आप शामिल कर सकते हैं और इस जिसको भी पानी पिलाएं साथ में उसको कहें कि 7 बार आयत करीमा लाजमी पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अगर बच्चा ना पढ़ सके तो ख़ुद 7 मरतबा पढ़ के उसके माथे पे फूंक मार दें, साथ में उसको पानी पिला दें। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर आपका ये डर खौफ भी ख़त्म हो जाएगा और आपके घर का जो रिज़्क़ रुका हुआ है वो भी इंशाअल्लाह जारी व सारी होगा और आप अपनी परवाज़ में आ जाएंगे। जी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर है लाहौर से, इन्होंने भी ज्वाइन किया है, जानते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाम बताइएगा अपना। बोल रही हूँ। नहीं, अपना नाम बताइएगा। फरजाना। फरजाना। और अगर आपका मसला तो वालदा साहिबा का नाम बताइएगा। जी मेरे ना घर का मसला है मैम। मैं घर बनाना चाह रही हूँ कि देखना है कि ये घर बना लूँ तो अलग अलग बेहतरी लाइन और उसके बाद अपनी वालदा का नाम बताइएगा प्लीज। अपने टीवी की आवाज बंद कर लीजिए प्लीज, ये बातें मैंने पहले भी अनाउंस की है। नसीम अख्तर है मेरी वालदा का नाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ रहेगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाएगी। इस हवाले से रहनुमाई लेते हैं पीर साहब से कि पीर साहब आपके बारे में क्या फरमाते हैं। पीर साहब क्या फरमाएंगे। मेरी तमाम देखने और सुनने वालों से एक गुजारिश है कि अगर कोई हमारी बहन, कोई बच्चा, कोई बच्ची किसी चीज़ के बारे में ये यकीन करना चाहे कि मैं ये काम करने लगा हूँ, ये होगा कि नहीं, चूँकि हम बेशुमार प्रोग्रामों में हमने वजाहत की है कि हम गैब नहीं जानते, गैब अल्लाह की मिरास है या उसने अपनी कुछ मुतबिर हस्तियों को वदियत किया। हम अहले इल्म हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इल्म के हवाले से बात करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। अगर कोई बच्चा या बच्ची किसी काम के बारे में ये यकीन करना चाहे कि मैं ये काम करने लगा हूँ, ये मेरे लिए सूदमंद है कि नहीं,
تو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک بچے کو یا خبیرو اخبرنی کا وظیفہ دیا ہے. ہر وہ بچہ جو کسی اپنے کام کے بارے میں رہنمائی لینا چاہے اپنے خالق اکبر سے, اللہ رب العزت سے, تو اس کو چاہیے کہ وہ رات زوال کے وقت کے بعد, یہ نوٹ کریں کہ دن کو بھی اور رات کو بھی 11:30 سے 12:35 تک زوال کا دورانیہ ہوتا ہے. زوال میں کسی قسم کی کوئی کلام نہیں پڑھی جا سکتی. رات کو زوال کے وقت کے بعد 303 مرتبہ یا خبیرو اخبرنی پڑھ کے دائیں کندھے پہ پھونک مار کے وہ شخص سو جائے, اللہ رب العزت بدریہ خواب اس کو اس کام کے بارے میں آگاہی دیں گے. میرا کامل یقین ہے اور میں بے شمار دفعہ یہ آزما چکا ہوں کہ میں نے اگر سفر پہ بھی جانا ہے تو میں اس کی رہنمائی کے لیے بھی میرا اپنا یہ وتیرہ ہے کہ میں رات کو یا خبیرو اخبرنی 303 مرتبہ پڑھ کے سو جاتا ہوں اور میرا رب میری رہنمائی کرتا ہے. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ دسمبر 2016 20 تاریخ کے دن میں نے شہر سے باہر جانا تھا, تو مجھے کسی میرے چاہنے والے نے فون کیا کہ پیر صاحب آج آپ باہر نہ نکلیے گا, آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے. میں نے کہا کہ میرا رب سب سے زیادہ نذیر و بصیر ہے اور وہ رحیم و کریم ہے. تو میں رات کو وہ پڑھ کے سویا اور مجھے خواب کیا آتی ہے کہ میں جب لاہور شہر میں انٹر ہونے لگا ہوں سگیاں پل کی طرف سے, تو عین پل کے اگلی طرف کچھ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے. خواب میں دیکھ رہا ہوں اور میں نے صبح اٹھ کے اس شخص کو فون کیا. میں نے کہا کہ آپ یہ کس طرح جانتے تھے کہ مجھ پہ حملہ ہونے والا ہے, اور میں نے اپنے اللہ سے بھی رجوع فرمایا ہے, تو میرے اللہ نے بھی میری رہنمائی کی ہے کہ واقعی مجھ پہ حملہ ہوا ہے. تو پھر اس کے باوجود بھی میں نے سفر کیا تو عین اسی طرح ہوا کہ جب میں سگیاں پل کراس کرتا ہوں تو 2 لوگ موٹر سائیکل پہ ہیں جنہوں نے ایک دم سے سامنے آتے ہیں اور میری گاڑی پہ فائرنگ کر دی. یعنی یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی مسنگ یا کوتاہی کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو میرے بچے, آپ اپنے گھر کے بارے میں بھی یہ کام ضرور کیجئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پروگرام کے بعد مجھے کال کریں. اگر آپ نے کوئی نیا گھر بنانا ہے یا اس میں شفٹ ہونا ہے تو اس میں داخل ہونے کے لیے, وہاں کی خیر و برکت کے لیے آپ کو کچھ صدقات اور کچھ وظائف لکھوائے جائیں گے, تو انشاءاللہ آپ شاد و آباد رہیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ بہاولپور سے, انہوں نے جوائن کیا ہے, جانتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. ہلو, غالباً کال جو ہے ڈراپ ہو چکی ہے. چلیں کوئی بات نہیں, پروگرام کے دورانیہ اگر آپ کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے تو آپ کی ٹی وی اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں, جو پرسنل نمبر ہے, موبائل نمبر ہے, وہ آپ اپنے پاس سیو کر لیجئے تاکہ پروگرام کے بعد آپ کال کر سکیں اور اپنے مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں جان سکیں. جی, نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ, جانتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. یہاں پہ آپ نے مجھے لائیو ہی دینا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ, نام بتائیے گا اپنا. میرا نام آمنہ شاہین ہے. آمنہ شاہین, ٹھیک ہے. اور والدہ صاحبہ کا نام بتائیے گا. والدہ کا نام عذرا برکت علی. میم میری نا لائٹ نہیں ہے, مجھے آپ نے لائیو بھی ادھر ہی کال بھی بتانا ہے. آپ کال ڈراپ کر دیں, کال ڈراپ کر دیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آن ایئر جو ہے ڈسکس نہیں کر سکتے, اور نہ ہی پیر صاحب سے جو ہے پوچھ سکتے ہیں آن ایئر. آپ کی سہولت کے لیے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں, وہ آپ نوٹ فرما لیجئے. آفٹر پروگرام آپ کال کیجئے گا, آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ پوچھ سکتی ہیں, اور انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جائے گی. آپ میرے بیٹے جو اس وقت ہماری بیٹی کال پہ تھی, ان سے درخواست ہے کہ آپ میرے پرسنل نمبر نوٹ کر لیں جی, اور 7 بجے کے بعد مجھ سے وہ وظیفہ لے سکتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. ہم آصف پہ بات کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ اپنی ٹیم سے درخواست کروں گا کہ 2 منٹ کے لیے ہمیں اس پہ ذرا روشنی ڈالنے دیں, کیونکہ یہ آج ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ کا یہ معاملہ ہے. اور آصف جو آپ نے ٹاپک دیا ہے یہ بے شمار جگہ پہ سامنے آیا ہے, خصوصاً ایسے علاقے جو بستیاں دریا کے قریب ہیں
वहाँ असेब ज़्यादा पाया जाएगा, या वो बस्तियाँ जो जंगल के करीब होंगी वहाँ भी असेबी खलल ज़्यादा पाया जाएगा जी। क्योंकि असेब का बसेरा जो है वो मखसूस जगहों पे होता है। जिस तरह पहले ज़माने में कुएँ होते थे, आज वो बंद हो गए हैं, आई ट्यूबवेल ने उनकी जगह ले ली है जी। तो पुराने कुएँ जो बंद हो गए थे उनके अंदर इनके बसेरे पाए जाते हैं। वो जंगल के जिसमें इंसानों का आना जाना कम हो, उनके कोने कदड़े वो इनकी जाए पनाह हैं, या वो पहाड़ी इलाके जहाँ बहुत कम इंसान आते जाते हैं, उनकी गारें और खंदकें वो इनकी जाए पनाह हैं जी। या फिर वो किले या खंडर जो पुरानी इमारतें बोसीदा हो जाती हैं और उनमें इंसान नहीं आते जाते, उनमें भी इनके बसेरे पाए जाते हैं। अब असेब के हवाले से हम अपने नाजरीन के लिए भी कुछ एहतियाती तदाबीर मेरा ख्याल है हमें बयान करनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूर। कि अगर किसी को ये शक हो कि हमारे घर में असेब है या कोई खलल है, तो उसको चाहिए कि उसके लिए हम 8 चीज़ें नोट करवाएंगे। सबसे पहले तो अगर किसी घर में असेब ज़दा मरीज़ हो, यानी किसी इंसान के साथ असेब का मरज़ है, तो उस मरीज़ को कस्साब की दुकान पे ना जाने दे, ख़ुसूसन उस वक़्त जब कस्साब वहाँ किसी जानवर को ज़िबा कर रहा हो, क्योंकि अगर असेब का मरीज़ किसी जानवर को ज़िबा होता हुआ देखेगा और उसका बहता हुआ खून देखेगा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और वो अजियत में आ जाएगा। फिर ऐसा घर या मकाम जहाँ असेब का खलल हो या उनको ये यकीन हो कि हमारे घर में कोई जिन्नात का बसेरा है या किसी हवाई चीज़ का बसेरा है, तो वहाँ किसी किस्म की हाजरात ना की जाए। अमूमन होता है ना कि एक घर में मरीज़ है तो किसी आमिल को बुलाते हैं तो वो उसी घर में हाजरात शुरू कर देते हैं। जो घर असेब से आलूदा है उस घर में हाजरात नहीं करनी चाहिए, नुकसान होगा। तीसरी बात कि असेब के मर्ज़ के मरीज़ को अगर उस पे जिन्नात हाजिर होते हैं तो बाकी घर वालों को चाहिए कि उनसे किसी किस्म की बातचीत ना करें। बाज़ घरों में हमने देखा है कि अगर एक बच्ची पे या बच्चे पे कोई साया हाजिर हुआ है, वो हम कलामी में आया है, तो आमिल हजरात के अलावा उसके घर वाले भी उसको पूछना शुरू कर देते हैं, आप कौन हो, कहाँ से आए हो। ये बाइसे नुकसान है। अगर घर में कोई असेब का मरीज है, उस जगह पे हाजरात वगैरह के आमाल भी हरगज ना किए जाएं, यानी हाजरात भी नहीं करनी और हाजरात के आमाल भी नहीं करने। और खसूसी हदायत, उस घर में बरोज़ जुमेरात गोशत ना लाया जाए। जुमेरात के दिन असेब ज़दा घर में या जिस घर में असेब का मरीज मौजूद है उस घर में जुमेरात के दिन गोशत ना लेकर आए। अगर लेके आएंगे तो वो खता होगी और वो बाइसे परेशानी बनेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ऐसा है, बुजुर्ग है, कोई हमारी बेटी है, कोई भाई है, कोई बच्चा है कि जिसके पास जिन्नात हाजिर होते हों या आते हों या उनसे लगाव हो उनको, ठीक है जी, उनसे राब्ते में हों और वो जिन्नात उसको कोई तोहफा दें या कोई ज़रो जवाहिर दें, तो उसको चाहिए कि वो किसी से भी उस राज को शेयर ना करे। अगर वो शेयर करेगा तो ख़ुद तो अजियत पाएगा और उनका दिया हुआ तोहफा भी जो है उससे भी वो फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। ये चंद ख़ताएँ थी जिनके बारे में मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि आपने असेब का टॉपिक दिया था तो उसके साथ एडिशनल जो चीज़ें थी उनका बयान करना ज़रूरी था। माशाल्लाह बहुत ही डीपली और अहम बातें जो हैं वो आपने असेब के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताई हैं। उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन इन बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर फिर भी आपको समझ ना लगे तो पीर साहब के पर्सनल नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, वो आप ज़रूर नोट कर लीजिए और फिर से पूछ सकते हैं जिस बात की आपको समझ ना लगी हो। हमारे साथ लाइव कॉलर हैं, काफ़ी देर लाइन पर वेट कर रहे हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, नाम बताइएगा अपना। मैम मेरा आमना। आमना,
हेलो जी आमना, अपनी वालदा का नाम बताइएगा। अजरा। अजरा, और आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 25 ईयर्स। ठीक है, मसला बयान कीजिएगा, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम मुझे ना जॉब के हवाले से पूछना है। मैंने अभी मेरे टेस्ट आया था तो वो मैंने दिया, तो अभी एक और है वो भी मैं दूंगी, तो मुझे या तो मुझे कोई वजीफा बता दे, मेरे हाथ में अगर बेहतर है तो मुझे ये मिल जाए, कोई ऐसा वजीफा बता दे बेशक। जी इंशाल्लाह ज़रूर आपको वजीफा बताया और जाएगा। जी मैम एक और पूछ सकती हूँ? जी ज़रूर, वाई नॉट, पूछ सकती हैं आप। अच्छा मैम, मेरी ना मंगनी हुई है, मेरी एंगेजमेंट हुई है, जी। तो मैंने उस हवाले से पूछना था कि वो मेरे हाथ में अच्छा है या ये थोड़ा सा पूछना था। अच्छा, लड़के का नाम आप ऑन एयर बताना पसंद करेंगी? हाँ जी, उसामा। ठीक है, थैंक यू सो मच आमना, हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ रहेगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाएगी, क्योंकि आमना बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, बहुत सारे रिश्ते इस तरह होते हैं, क्योंकि हर घर में टीवी होता है और सब लोग देख रहे होते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पीर साहब आपसे ऑन एयर नहीं जान सकते। आपने अपने रिश्ते, क्योंकि रिश्ता जो होता है वो पूरी लाइफ का मामला होता है, वो चंद दिनों की बात या चंद महीनों की बात नहीं होती, पूरी लाइफ का मामला होता है। तो आप पर्सनल नंबर पर कॉल कीजिएगा, इस हवाले से आपकी रहनुमाई ज़रूर की जाएगी। जॉब के लिए आपको फिर फॉर जो वजीफा बताया जाएगा वो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जानते हैं पीर साहब से। पीर साहब आप आमना मेरी बेटी, आपने जो जॉब के हवाले से सवाल किया है उसके लिए आप नोट फरमाएं कुरान पाक पारा नंबर 27 सूरह वाक़िया, और इसके पढ़ने का तरीका ये है कि आपने ये जुम्मे के दिन से आगाज़ करना है इसका, बाद नमाज जुमा 3 बजे के करीब आप बैठें बावज़ू हालत में जाए नमाज पे और सूरह वाक़िया तलावत करें, और फिर हाथ उठा के अपने रब से अपने मकसद की बराबरी के लिए दुआ फरमाएं। और इसी तरह जुमे से आगाज़ करना है और जुमे पे एंड करना है, और रोज़ाना आपने उसी टाइम पे नमाज ज़ोहर असर के दरमियान ये सूरह वाक़िया पढ़नी है और दुआ करनी है बाद में कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे इस जॉब के लिए मुझे कामयाबी अता फरमा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 7 दिन के वजीफ़े के बाद आपको इंशाअल्लाह कामयाबी से आप हमकनार होंगी और आप इंशाअल्लाह इस जॉब को हासिल कर सकेंगी। दूसरा मसला जो है आपका, वो आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, तो बेहतर यह है कि कल 9 बजे के बाद आप कॉल करें, ताकि मैं आसानी के साथ जो उसके लिए टाइम दरकार है 20 मिनट का, उसमें कुरानी ज़ैचा बातनी खोल के आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकूँ। और तमाम सुनने वाले भी ये है कि जिसने तसल्ली बख्श जवाब लेना है और उसका कोई डिस्कस करना है कोई मसला, तो वो सुबह 9 से 3 बजे के दौरान मुझे कॉल करें। जिन्होंने सिर्फ वजीफ़ा लेना है या कोई छोटी मोटी बात करनी है तो वो रात को भी कर सकते हैं। मैं रात के 2:30 बजे तक ऑन एयर होता हूँ, ऑनलाइन होता हूँ अपने टेलीफोनों पे, फिर मैं अमाल के कमरे में जाता हूँ, अमल करता हूँ। सुबह 6 से 8 मेरी उन बच्चियों से जो आज सुबह 7 बजे जिन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, दोनों हाथ बांध के उनसे दरख्वास्त है कि बूढ़ा बंदा हूँ, 2 घंटे मेरी नींद है, 6 से 8 उस दौरानिए में मुझे कोई कॉल ना करे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमारे साथ लाइव कॉलर पीर साहब, उनको ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सैमा बात कर रही हूँ इमदादुल खान से। जी साइमा, अपनी वालदा साहिबा का नाम बताइएगा। मेरी वालदा का नाम रुकिया बेगम है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद असलम है। मेरी आप भी हैं, फौजिया नौरीन उनका नाम है, शादीशुदा है। ठीक है, नूरीन के हवाले से आप जानना चाह रही? हेलो साइमा, नूरीन के हवाले से आप जानना चाह रही हैं? फौजिया नौरीन के हवाले से, मेरी बहन है, उन्हें बवासीर का बहुत ज्यादा मसला है। ठीक है, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ रहिएगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाएगी। नूरीन की बीमारी के हवाले से आपको वजीफा बताया जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। जानते हैं इस हवाले से पीर साहब से। पीर साहब आप मेरी बेटी, पहले तो तमाम देखने और सुनने वालों से मेरी एक गुजारिश है कि मुझे कॉल करके जो कहते हैं जी मैंने अपने मामू के बारे में पूछना है, अपने चाचा के बारे में पूछना है, देखिए ये कुरानी ज़ाचा है, अल्लाह की कलाम आईना खुदा है। इसके अंदर हम जब नाम और माँ का नाम और डेट ऑफ बर्थ या अंदाज़ा उम्र दाखिल करते हैं, उसका ज़ाचा बातनी खोलते हैं, तो बहुत सी खसूसियात सामने आती हैं। मसलन उसके जिस्म के तमाम अमराज सामने आते हैं, उसकी आने वाला कल और गुजरा हुआ कल सामने आता है। तो इसलिए मेरा एक असूल है कि मैं छोटी बहन का ज़ायचा बड़ी बहन से भी शेयर नहीं करता। उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि बेटा जिसका मामला है या तो वो खुद बात करे या फिर उसकी माँ, उसका बाप
वो जो उसके वारसान हैं वो बात करें मुझसे। ये जो भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में, चाचा और फुप्पो और मामा के बारे में जानना है, ये मजाक नहीं है, अल्लाह की कलाम है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने पूछनी भी होती हैं, मालूमात दरकार होती हैं, और कुछ चीज़ें उनको बतानी होती है जो उसकी साथ ज़ात से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये दरख्वास्त है कि जिसका मसला हो वो अपनी ज़ात के लिए सवाल करे, और अगर कोई और उसके सामने है कि जिसको जानना ज़रूरी है तो वो मेरा नंबर उनको दे दे ताकि वो अपनी ज़ात के बारे में पूछ सके। जी बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। गालबन कॉल जो है ड्रॉप हो चुकी है। चलें कोई बात नहीं, प्रोग्राम के दौरान अगर आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है या वो हमारे नाज़रीन जो ऑन एयर अपना मसला डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती जो ऑन एयर डिस्कस नहीं कर सकते आप लोग, तो आपकी सहूलत के लिए नंबर डिस्प्ले किए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं पीर साहब के पर्सनल नंबर है, ये आप नोट कर लीजिए। प्रोग्राम के बाद जब चाहे मर्जी आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताइएगा अपना। ललिता बात कर रहा हूँ भावलपुर से। नहीं, नाम रिपीट कीजिएगा। जी मैं ललिता बात कर रहा हूँ भावलपुर से। ठीक है, अपनी वालिदा साहिबा का नाम बताइएगा। नजीर बेगम। और आपकी उम्र कितनी होगी अंदाजन बता दीजिए। जी मेरा मसला ये है कि 5-6 माह से मेरा कारोबार रोजी जो है ना बिल्कुल वो ठप हो गया, काम काज नौकरी वगैरह मेरी अच्छी खासी नौकरी थी, अभी भी ऑफर होती है लेकिन बिल्कुल जिसके वाइंड अप हो जाता है काम। चलें, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ रहिएगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाएगी। कारोबार की बरकत के लिए पीर साहब की तरफ से आपको वजीफ़ा बताया जाएगा, आप नोट फरमा लीजिएगा। जानते हैं पीर साहब से। पीर साहब आप क्या जी, मैंने कल भी प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 4 मरतबा ये अनाउंस किया था कि अगर किसी शख्स को कारोबार में उतार चढ़ाव है, परेशानी है, तो वो कुरान पाक के पारा नंबर 13 के आखिर से लेके 14 के शुरू तक सूरह हजर वाक़या है, वो 1 मरतबा रोज़ाना तलावत करे और 7 दिन तक ये तलावत करे तो उसको कारोबार की जो परेशानी है वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह यकीनन आपके मसले का हल आपको मिल चुका है। बहुत ही अच्छा वजीफ़ा बताया पीर साहब ने आपको, बल्कि कारोबार की बरकत के लिए और फ्लॉप कारोबार के लिए हमेशा जो है प्रोग्राम में पीर साहब जो है लोगों की रहनुमाई करते रहते हैं, डेली कोई ना कोई वजीफ़ा बताते हैं, तो आप नोट कर लिया करें। अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं प्रोग्राम के बाद तो आप नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं जो आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप लोगों की रहनुमाई की जाएगी। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, नाम बताइएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज टीवी की आवाज बंद करके हमसे बात कीजिएगा। अपना नाम बताइएगा। हेलो, वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइएगा। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। कॉल जो है आपकी ड्रॉप हो चुकी है। मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में सब नाज़रीन को ये अनाउंस कर देती हूँ कि प्लीज़ अब जब कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल किया करें, ताकि इसमें आपकी बेहतरी, आपका भला है। पीर साहब का बहुत कीमती वक्त तो होता है जो आप लोगों की रहनुमाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, सो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल किया करें। हम नहीं चाहते कि आपकी कॉल ड्रॉप हो या ड्रॉप की जाए। बहुत शुक्रिया, आप इन चीज़ों का ख्याल किया करें। फिर भी अगर आप राब्ता नहीं कर पाते या आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है तो आपकी सहूलत के लिए नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, वो आप ज़रूर नोट कर लिया करें ताकि प्रोग्राम के बाद भी आप कॉल कर सकें। अगेन कॉल है हमारे साथ, जानते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताइएगा अपना। हेलो, प्लीज अपना नाम बताइएगा। उस्मान बोल रहा हूँ जी उस्मान, अगर आपका मसला तो वालिदा साहिबा का नाम बताइएगा और साथ टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। मसला बयान कीजिएगा, क्या जानना चाहते हैं आप। ये 2 साल हो रही ना जी, मैं 2 साल हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ रहिएगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाएगी। बेऔलादी के हवाले से आपको वजीफा बताया जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। जानते हैं पीर साहब से। पीर साहब आप मेरे अजीज़, आपके लिए, दोनों मियाँ बीवी के लिए ये वजीफ़ा है कि कुरान पाक के पारा नंबर 13 में सूरह इब्राहीम वाक़या है। सुबह उठें दोनों मियाँ बीवी, 1-1 मरतबा सूरह इब्राहीम की तलावत करें
पानी पे दम करके ये सूरह जो है वो पानी वो रोज़ाना आप पिएं। बीवी जो है वो 14 दिन तक वजीफ़ा करेगी, शौहर जो है वो 7 दिन तक वजीफ़ा करेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपके नसीब में औलाद लिखी है वो आपको इंशाअल्लाह उसके लिए उम्मीद देंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद नरीना से नवाजेंगे। जी जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम अपना जी, नाम हमें अपनी बताइएगा। बच्ची के बारे में पूछना था कि हम लोग आपके बैठ के ना देख रहे थे जी तो ये नंबर वगैरह है तो हम जरा अपनी बच्ची के बारे में पूछेंगे। उसे ना काफी टाइम से मसला है। बेटी का हम नाम बड़ी बताइएगा। बेटी का नाम अज़बीहा रामीन। नहीं, नाम रिपीट कीजिएगा। अज़बीहा अलिफ जे अज़बीहा, बे ठीक ये है। ओके ओके ठीक है रामीन रे अलिफ मीम ये नून रामीन। ठीक है। और एज बताइएगा बच्ची की, उम्र बताइएगा। उम्र उसकी 8 साल है। ठीक है। वालदा का नाम? जी वालदा का नाम नादिया। नादिया, ठीक है। मसला बयान कीजिएगा। अब आप बता रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जी उसको ना दौरा से पड़ जाता है, काफी उसका मसला बना। हम बड़ी जगह से दवाई ले चुके हैं, दम भी हम लोग करवा चुके हैं, लेकिन हमारी बच्ची को आराम नहीं आ रहा। चले, बहुत शुक्रिया। आप इस बात का यकीन रखें कि आपने एक मजहबी रूहानी प्रोग्राम में कॉल किए तो इंशाल्लाह आपको शफात ज़रूर मिलेगी। इस हवाले से रहनुमाई लेते हैं। मेरी बहन, बात यह है कि घर में जो भी कुरान पाक पढ़ता है बाकायदा सबसे पहले तो अपनी बेटी का 1.5 किलो गोश्त लाएं बड़ा और बेटी का हाथ लगा के उसको सदका करें, ठीक है। और उसके बाद कुरान पाक के पारा नंबर 27 में सूरह तूर तोएं वाओ रे सूरह तूर वाक़या है। आपने दिन में 2 मरतबा सूरह तूर की तलावत करनी है। बच्ची के सामने बैठ के पानी का एक गिलास या उसका फीडर सामने रख के, अगर वो दूध पीती है तो फीडर रखें, अगर वो दूध की या दूध से बाहर निकली है, कोई गज़ा वगैरह खाती है तो फिर पानी रख लें। सूरह तूर तलावत करें 1 मरतबा सुबह, 1 मरतबा नमाज मगरब से आधा घंटा पहले। ये सूरह तूर 2 मरतबा तलावत करके पानी दम करके उसको पिलाएं। मैं कामल यकीन के साथ आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह 7 दिन के वजीफे के बाद आपकी बच्ची को दौरा नहीं पड़ेगा, बच्ची आपकी सेहतयाबी की तरफ आएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदके उनको शफाए कामला और कुल्ली अता फरमाएंगे। जी इंशाल्लाह यकीनन आपके मसले का हल आपको मिल चुका है। बहुत ही अच्छा वजीफा बताया पीर साहब ने आपको। आप इसको कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद अगर आप कोई बात जानना चाहते हैं या वो नाज़रीन जो ऑनियर अपना मसला डिस्कस नहीं कर सकते तो पर्सन नंबर नोट हो रहे हैं, वो आप ज़रूर नोट कर लीजिए। प्रोग्राम के बाद आप जब चाहें मर्जी आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। पीर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल कम रह गया। मैं चाहती हूँ हमारी पूरी टीम के लिए और तमाम नाज़रीन के लिए दुआ की जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे खालिक व मालिक, तेरी ज़ात रहीम व करीम है। तेरी बारगाह में हाथ उठाए तेरी रहमत के तलबगार हैं, हम पे रहमत फरमा। ए मेरे अल्लाह, हमारे इस मुल्क पाक पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। ए मेरे अल्लाह, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान पर अपनी ख़ास रहमत का साया नाज़िल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे पाकिस्तान आर्मी को हर महाज पे फतह और कामरानी नसीब फरमा। हमारे पाकिस्तान आर्मी के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन जो है ना उनको पस्त फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जो बच्चियाँ बच्चे बे औलाद हैं जिन्होंने हमारे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, हर एक का फर्दन नाम नहीं ले सकते, टाइम की किल्लत है, तमाम को औलाद नरीना अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जो तंग दस्त हैं अपने गैब के ख़जानों से उनकी मदद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जो बीमार हैं शफा बीमार करबला का सदका उनको शफाए कामला और कुल्ली अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जो बेजुर्म असीर हैं असीरान शाम का सदका करके उनकी रहाई का सबब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, नादान हैं कम अकल हैं, जो मांग सकते हैं वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सकते वो भी अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, स्टार एशिया न्यूज़ की जो टीम इस वक्त इस कार्य खैर में मसरूफ़ है, तमाम की अज़रूए शरीयत दिली हजात पूरी फरमा, तमाम के घरों पे रहमत फरमा। हमारे ऑनर अब्दुल्ला साहब को सेहत कामला और कुल्ली अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।
पीर साहब इसके साथ ही आपसे इजाज़त पीर को फिर चाहती हाज़िर हूँ। हूँ। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम नाज़रीन की रहनुमाई के लिए अपने कीमती वक्त में से यहाँ तशरीफ़ लेके आए और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई की। नाज़रीन, इसके साथ मुझे और पीर साहब को और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि पीर को फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट सदफ चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। खुशियों का दौर दौरा है स्टार एशिया न्यूज पे। जैज़ी 10 न्यू ईयर स्पेशल है। जस्ट 2 घंटों की दूरी पे 2018 जब नॉक नॉक करने वाला है। 17 जा रहा है, 18 आने वाला है। वे सजना वे आके मिल जा, लब दे नैना आके मिल जा, सारी सारी रात सोच सोच रोते रहने आ। शोबिस का साल कैसा रहा? काफी मूवीज रिलीज हुई हैं और काफी अच्छी रिलीज हुई हैं। हाँ, पंजाब नहीं जाऊंगी। हाँ। मेरा 24/7 लक हिरना हिरना हिरना। अहमद, आप बताइए ये साल कैसा रहा? दोनों चीजें चलती हैं लाइफ में। जब तक कोई मुश्किल ना आए तो तब तक समझ नहीं आती कि अच्छे की तरफ जाना कैसे है। देखिए प्रोग्राम न्यू ईयर स्पेशल जैसी एट 10:10 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर। Wash your hands with soap. Use a tissue for cough. Use hand sanitizer gel. Maintain social distancing. Stay apart. Avoid touching your face. Stay safe, stay healthy and stay home. इरशादे बारी ताला, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें तख्लीक किया और उनको भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जिस जात ने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी उतारा और इसके जरिए तुम्हारे लिए फलों का रिज्क निकाला, तो तुम अल्लाह का किसी को शरीक न बनाओ और तुम जानते हो।